ਉਹਦੀ ਸਿਤਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਰੂਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ पूरे मन के नाल पूरी ताकत के नाल कर सकिए। आओ अपने हाथों में उठाइए, खुदावन का शुक्र करिए कि खुदावन ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਹੋਠਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। जिस तरह आसमान के फरिश्तों की इबादत कर रहे हैं वैसे तरह असी भी उसका शुक्राना कर सके, उसके नाम मुबारक आख सके। हर दिन बनाने वाला तुम्हें पास्टर जी ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ। आइए परवाह करिए। खुदा ने जिंदगी ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਗਣ ਦਾ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਖੁਦਾਵੰ मेरी जिंदगी में तू कबूल कर, मेरे को जो चाहता है वो खुदा, जिस तरह मैं चाहता है उस तरह नहीं, बल्कि जो तू चाहता है वो मेरे को खुदा। तेरे काम जो है मेरी जिंदगी में खुदा और दूसरे लोगों जिस खुदा तुम्हारे हवाले अपने हम कर देंगे। इस सवाल में हमारे लिए अपना बड़ा काम कर खुदा, अपने लोगों ने ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਜੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੀ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ ਜਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਿਰੋਏ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਸਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਗ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜੀਵ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਉਠਾ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਦਿਲ ਤੇ ਮਸਾ ਕਰੋ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਮਸਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। बड़ी बरकत और वाले लोगों ने देखी सो इस्लामी अपने कार्य से क्या खुदावंद जो भी उम्मीदा जो भी करे वो लेके हमने खुदावंद यीशु मंगे खुदावंद उन्हें मनो मुरादें पूरा करना खुदावंद करे खुदावंद ताकि हाथ में क्या अपने रुस्वाम दे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आओ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा।
लश्करां दा खुदा ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा
ओ जीवन मिलिया मिलिया आशीष तेरी तेरी बरकत आई है खुदा। आशीष तेरी तेरी बरकत आई है खुदा। बंधन टूट गए अंदरूं सुन गए, टूट गए मंदिर मुक्त गए,
18 verse 41। तद एलिया ने अहाब ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚੜ ਜਾ ਅਤੇ ਖਾ ਪੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਡਾਟੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਹਾਬ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਅਤੇ ਏਲੀਆ ਕਰਮਨ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਵਿਆਂ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚੜ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਉਹ ਚੜਿਆ ਜਦ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ 7 ਵਾਰ ਮੁੜ ਜਾ। ਤਾਂ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇਖ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਬੱਦਲ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹਾ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਆਖ ਭਈ ਰੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਂਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਅਟਕਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
हालेलुया। आए हम बैठ जाइए। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾ ਦੇਖ ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ 7 ਵਾਰ ਘੱਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਯੈਸ ਉਹ ਉੱਤਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕੱਢ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਲੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਲੇ ਪੇਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛੂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਸ਼ਿਫਾ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ 7 ਵਾਰੀ ਦੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ 1 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਮੀਂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ ਆ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਵੀ ਅਚੰਭੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਘੁਟਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਵਰਾਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜ, ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਭੇਜ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਦੇਖ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 1 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਆ ਮੀਂਹ ਭੇਜ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿ ਖੁਦਾ ਸੱਚਾ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਬਰਕਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੂੰ ਫੁੱਲਵੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੀ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਵਾਅਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਨਾ ਵਰਾਇਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਥਿਆਰ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਦੇਖ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਆ ਵੀ ਕਰ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਘੱਲੂਗਾ। ਉਹ ਥੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਊਗੇ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੱਲੀਏ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀਨਤਾ। ਉਹ ਹੰਬਲਨੈਸ ਆ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖ। ਔਰ 7 ਵਾਰੀ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ 7ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੱਥ ਜਿੰਨਾ ਬੱਦਲ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਤਨਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਡਬਲ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਲਵੰਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਪੈਸੇਜ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੀਏ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੁਣੇਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗਵਾਂਢੀ ਦੂਜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਕਿ ਖੋਲ ਬੂਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਆਏ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਿਲਾਉਣਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਤੂੰ ਸੌਂ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲੇਟ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਆ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਧਾਰਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਜ ਪੱਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਔਰ ਏਲੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦਾ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸੀ ਉੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਦਾਸ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੇ, ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ, ਕਾਇਮ ਹੋਣ, ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ 7ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਦੇਖ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਸੇਮ ਕੰਮਾਂ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਫੇਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਦੀਨਤਾ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹਦੀ ਖਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਰਾਸਤਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭਵਨ 'ਚ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਪਾ ਲਈਆਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ? ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਆ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਚੱਟਾਨ ਤੇ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਉਣ, ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਾ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਣ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣ, ਬੱਚੇ ਬੁਰੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੀਂਹ ਆ ਉਹ ਨਾ ਹਿਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਈਮਾਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣਿਆ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇ। ਹਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਆ ਲੈਣੀ, ਆ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਚਾਂ ਦਊਂਗਾ, ਵਿਚਾਰ ਦਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਰਾਹ ਪਾਉਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕਦਮ ਡੋਲਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਤਿਲਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਿਲਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਵਾਸ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਫਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਈਮਾਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੋਂ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੇਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅਗੁਆ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿਲਕਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਾਈਏ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲੁਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। that there is no limit। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦਿੱਤੀ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ, 1 ਆਵਰ, 2 ਆਵਰਸ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਗਣ ਲਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗਦੇ, ਉਸੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੇ ਭੈਣ ਲਈ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਸੁਣੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚਲਾਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਦਲੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਹੀ ਖੜਾ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਖੜਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਏਲੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਿਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਯਤਨ ਕਰੋ। ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਆਤਮਿਕ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜੌਬਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਅਣਥੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਟੂਟ,
ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਆਉਗੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਫਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚੈੱਕ ਆਇਆ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਵਰਕਡ ਹਾਰਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਕaholic ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਕaholic ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਔਰ ਇਸ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਦੀ ਰੂਪਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सभी भाई बहन को मेरी तरफ से जय मसीह की। करिए जे विश्वास ते सब कुछ हो सकदा है। निष्ठा के नहीं पहाड़ खलो सकदा है। करिए जे विश्वास ते सब कुछ हो सकदा है। ते सब कुछ हो सकदा है। ते सब कुछ हो सकदा है।
हालेलुया। आए हम सब बैठ जाए। अब हमारे पास समय है कि हम खुदावन के जलाल के लिए टेस्टिमनी सुने और मैं रिक्वेस्ट करूंगा पाजी अमित को कि वो आगे हों अपने टेस्टिमनी। सारे जय मसीह दी। मैं पिछले हफ्ते मैं बहुत बीमार हो गया सी, मुझे चेस्ट पेन हो गई सी, मैं हॉस्पिटल दाखिल सी ते मैं डॉक्टर को क्या डॉक्टर कहता भी तेरे हॉस्पिटल जाना पैना। मेरा टेस्ट होया सी, स्ट्रेस टेस्ट होया सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋर्ट थोड़ी ठीक नहीं आई सी ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿਵਲ ਬਲੱਡ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਈ, ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਈ। मेरा टेस्ट सही है पर डॉक्टर को लगता सी शायद मेरे भी कुछ ब्लॉकेज ना होवे, हार्ट में कुछ ब्लॉकेज ना होवे, पर रब ने सारा कुछ सही किया। कल मेरी एंजियोग्राफी हुई, सारा कुछ बिल्कुल रिपोर्ट बिल्कुल सही है। सारा साल में हालेलुया। जोर जोर से तालियों के साथ खुदा का धन्यवाद। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਈਏ। ਸਿਸਟਰ ਪੂਨਮ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। रजनी दीदी, रजनी, मिसेस रजनी, अच्छा जी। और सेकंड को है गया मिस्टर एंड मिसेस एंथनी एंड किरण। ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਸਾਰਨ ਜੈਮ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅੰਤਰੀ ਹੈ और मेरी वाइफ का नाम किरण। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੂਨਮ ਆ ਐਂਡ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਂ ਸਮੂਥਲੀ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗॉड। और एक भाई है दीदी अनीता जी। सारे हम जानी सी। मेरा नाम अनीता है, मेरी दो गवाइयां। पहली गवाही का है कि ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵੈਨਸਡੇ ਮੇਰੀ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਦੀ ਐਵਰੀ 6 ਮੰਥ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਦੇ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਪਿਕਚਰਸ ਆ ਜਾਣ। ਬਟ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ
ਡਾਈ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਪੌਲ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਆਫਟਰ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਈ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਸਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਪਾਉਂਡਿੰਗ ਹੈਡੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਫੇਸ ਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਿੰਗਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਡ ਬਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਡ ਬਲੂ ਲਾਈਕ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨਸ ਲਾਈਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਤੇ ਆਈਸੀਯੂ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ੇਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 10-15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਚੱਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਲਰਜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। हालेलुया। एक और गीत गाएंगे, हम खड़े हो जाएं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एंथनी 2 मिनट स्टैंड में बुला लो। हालेलुया। साडे विच दीदी रजनी आ गए नहीं आए? चलिए कोई नहीं। हालेलुया। और इस गीत के दौरान असीं खुदावंद दा धन्नवाद करिए, पूरे जोश के नाल तालियां मार के गीत गा के ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੈਸ ਯੈਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੇਨ। ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਈਏ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੇਨ। ਅਗਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ? परमेश्वर का। हालेलुया। अपने होठां नाल तालियां बजा के हत्थां नूं उठा के ओहदा धन्नवाद जरूर करांगे। हालेलुया हालेलुया। ब्रदर राजू ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਆਓਗੇ ਲੜਾਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। आइए सब मिलकर खुदा की मेहमानी भजन गावांगे। धन्नवाद जी पेश कराइए सच्चे रब दा शुक्र मनाइए। सब नूं आंदा जी शुक्र गुजारी करिए। हालेलुया। धन्नवाद दी पेट चढ़ाई Sing it!
सकते हैं तो शीट रखें। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे। अब समा है खुदा के कलाम का, जो हमारे राहों के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है। आज हम सब जितने यहाँ मौजूद हैं अपने लिए दुआ मांगे। दुआ ये मांगे कि खुदा तेरा जब कलाम खुले तो मेरी जिंदगी के लिए रोशनी और मेरे राहों के लिए चिराग बने। हालेलुया, हालेलुया। आंखें बंद करें। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। अपने अपने लिए दुआ मांगे। खुदा को कहें, खुदा मुझे समझने वाला मन दे, खुदा समझने वाला मन दे। हालेलुया, अपने आप को दी करें। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। हालेलुया, खुदा तेरी हुजूरी के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदा तेरा तख्त इस जगह पर लग चुका है, हम तेरा शुक्र करते हैं। हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं। तेरा कलाम फरमाता है जब ये खुलता है तो अंधे रोशनी पाते हैं, लंगड़े चलते हैं, गुनाहगार गुनाहों से निजात पाते हैं, मुर्दा जिंदा होते हैं। बख्श दे खुदा, आज तेरे हम जब तेरा कलाम खुले, आज तेरे बड़े कामों को हम देख सके। खुदा हमें सुनने वाले कान और हमें समझने वाला मन। खुदा मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूं। खुदा मैं भी इस्तेमाल कर। खुदा तेरा कलाम आज जो मेरे वसीला तेरे लोगों तक पहुंचे, खुदा हम सब के लिए बरकत है और हमारी जिंदगी में 30 गुना 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना बरकत लेके हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। मसीह यीशु का नाम लेके मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु के बाद फिर जलाली और कुदरत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। तो कितने हैं जो आज बाइबल लेकर आए? हालेलुया। जो नहीं लाए, जो पढ़ सकते हैं, दुआ करें कि खुदा ये तेरा कलाम हम गीतों में गाते हैं, हमारे राहों के लिए रोशनी है, तो फिर रोशनी हमारे साथ क्यों नहीं चलती, क्यों नहीं लेकर आते? जब कलाम आप साथ लाएंगे, आप पढ़ सकते, पढ़ने का फायदा उठाएं। अभी गीत गाया बहन ने, बिच मैं डरांगा मैं विश्वास करांगा। विश्वास कैसे आता है? विश्वास सुनने से, पढ़ने से आता है। हम जब उसे सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो विश्वास आएगा कैसा? फिर फतह क्या होता है? जब बहरान आते हैं, तूफान आते हैं, मुश्किलें आती हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? सहारा ढूंढते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो इस कलाम को सुनता है, पढ़ता है, उस पर अमल करता है, फिर वो अपना घर कहां बनाता है? कहां बनाता है जी? चट्टान। तूफान आए, बहरान आए, मुसीबतें आई, उस घर को क्या कर ना सकी? गिरा ना सकी। क्यों? क्योंकि उस घर की जो नींव है चट्टान पर रखी है। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आप गिरजे में आते हैं, कलाम पढ़ते हैं, दुआ करते हैं कि आपकी जिंदगी में तूफान नहीं आएंगे। कलाम में लिखा तूफान आएंगे, पर हमारा घर अगर उस चट्टान पर बना है तो तूफान उस घर को हिला नहीं सकेंगे। हालेलुया। याद रखें, दाऊद नबी जैसे खुदा में बढ़ता गया, उसकी मुसीबतें भी बढ़ गई। हालेलुया। और याद रखें, मुसीबतों ने भी उसे छोड़ा तो खुदा ने भी उसे छोड़ा। खुदा ने उसे क्या किया? सरफराज किया। अगर हम कलाम को अपने साथ लाएंगे, जब उसमें पढ़ते हैं, शामिल होते हैं, तो हम बरकत पाएंगे। हालेलुया। तो पढ़े लिखे होने का फायदा उठाएं। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो अलग बात है, आप सुने, गौर से सुने। अगर पढ़ सकते हैं तो इसे जरूर लाएं। ये जिंदगी बख्श कलाम है। इसे उठाने में अगर आज आप इसे सहारा देंगे, इसे उठाएंगे, अगर आपको कोई ना सहारा देगा तो ये बाइबल मुकद्दस आपको सहारा देगी। हालेलुया। ये बाइबल का खुदा आपका सहारा बन जाएगा। हालेलुया। इसको किसी सहारे की जरूरत नहीं है, दुनिया को सहारा देता है।
हालेलुया। आप इज्जत करें इसकी, इसे जरूर साथ लाएं। आइए मेरे साथ कलाम खोलें जिनके पास खुदा का कलाम है। पिछले इतवार पास्टर जी ने एक पैगाम दिया था, जब ये दे रहे थे तो मेरे मन में एक बात चल रही थी, मैं उसी को शेयर करूंगा। खुदा के दास ने इफिसियों का खत पढ़ाया था, उसमें लिखा था कि पौलुस कहता है कि मैं खुदा के आगे घुटने टेकता हूं। क्यों टेकता हूं? कि तुम उसकी सामर्थ्य में क्या बनो? बलवंत होते जाओ। बलवंत कैसे होंगे, मजबूत कैसे होंगे? आइए आज खुदा के कलाम से देखें। पुराने अहदनामे में से उसका सेकंड राजा, दूसरा राजा और उसका 6 बाब और उसकी 8वीं आयत। ओल्ड टेस्टामेंट दूसरा राजा, सेकंड किंग, उसका 6 बाब और उसकी 8वीं आयत। मेरा मान है कि अगर आप गौर से सुनेंगे, अपना ध्यान खुदा की तरफ लगाए रखेंगे तो आज बरकत पाएंगे। हालेलुया। इधर उधर नहीं देखना, क्योंकि शैतान बड़ा हीलेबाज है, वो हमारे ध्यान को भटकाता है। एक भी चीज आपने मिस कर दी तो आप बरकत मिस कर देंगे। ये जिंदगी बख्श कलाम है, आप चलिए इसको साल बड़े गौर से सुनना है। हालेलुया। सो सेकंड किंग उसका 6 बाब और उसकी 8वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आराम से सुनना है। उसमें यूं लिखा है, आराम का राजा इस्राएल से युद्ध कर रहा था। आराम ये पुराना नाम है, यानी मॉडर्न जो नाम है, आज का नाम जो है वो सीरिया है। सो सीरिया तो आपने सुना होगा, सो ये बहुत बात कर रहा हूं। सो सीरिया का राजा इस्राएल से युद्ध कर रहा था और सहमति करके अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। प्लानिंग बना कि इस्राएल के कर्मचारियों से क्या करेंगे, हम अपनी छावनी लगाएंगे, फौजें उठाएंगे। किसके विरुद्ध? इस्राएल के विरुद्ध। 9वीं आयत, तब परमेश्वर के भक्त ने इस्राएल के राजा के पास कहला भेजा कि चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर ना जाना, क्योंकि वहां अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। खुदा ने अपने बंदा को, जो वो दुश्मन उस जगह पर चौकी लगाने वाला था, छावनी लगाने वाला था, अपने बंदा को बताया कि बादशाह को जाके बता कि तू अलर्ट हो जा, होशियार हो जा। आगे सुनिए 10वीं है, तब इस्राएल के राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की। और इस प्रकार 1-2 बार नहीं, वरन कितनी बार हुआ? बहुत बार। वो प्लानिंग बनाते थे, मंसूबे बनाते थे कि हमने इस्राएल पर क्या पाना है, गलबा पाना है, फतेह होना है। पर खुदा अपने नबी को, अपने बंदा को दुश्मन के प्लान बताता था। तो वो क्या करता था? नबी बादशाह को बताता था इस्राएल को कि अमुक स्थान पर दुश्मन चौकी लगाने वाला है, तो तू अपनी हिफाजत कर। तो इस्राएल अपनी क्या करता था? हिफाजत करता था, बचाव करता था, तो दुश्मन उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। आगे सुनिए 11वीं आयत, इस कारण अराम का राजा का मन बहुत घबरा गया। सीरिया का जो बादशाह था वो बहुत घबरा गया। क्यों घबरा गया? कि वो जो प्लानिंग करता है वो सारी फेल हो जाती है। आगे सुनिए, अंत उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा। क्या पूछा? क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन इस्राएल के राजा की ओर का है? उन्हें शक हो गया कि असी केड़ा प्लानिंग बनाने हैं, असी जेडी दुश्मन फड़न ली मंसूबे बनाने हैं, साडा कोई बंदा तो नहीं लड़िया दूसरी कौम, फौज दे नाम, दुश्मन दे नाम। वो अपने कर्मचारियों से पूछने लगा, अब मुझे बता, हमारी तरफ से कोई ऐसा तो नहीं शख्स जो जाकर उनको खबर दे देता है? आगे सुनिए 12वीं आयत, अलीशा जो इस्राएल में
भविष्यवक्ता है वह इस्राएल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शहर की कोठरी में बोलता है। उसका एक कर्मचारी, अराम के बादशाह का एक कर्मचारी उसको बताता कि इस्राएल में एक बादशाह है, एक नबी है, जो तू बातें कोठरी में जाकर करता है वो खुदा उसे बता देता है। जो तू गुप्त में बातें करता है खुदा उस पर भेद खोल देता है, वो उस पर सारी बातें प्रकट कर देता है। अब राजा क्या कहता है? 13 आए, राजा ने कहा जाकर देखो कि वहां वे कहां है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगाऊंगा। सीरिया का बादशाह कहता फिर बंदा ही ला लो, उन्होंने फाड़ना में काम ही खत्म हो जाएगा। आगे सुनिए, तब मैं उसको पकड़वा लूंगा। उसको यह समाचार मिला वह दोतान में है। बादशाह जो आराम खाता उसको यह समाचार मिला कि वह दोतान में है। दोतान एक जगह का नाम है कि अलीशा कहां है? दोतान में है। 14 आए, तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को जाकर उस नगर को घेर लिया। एक बड़ा लश्कर भेजा, घोड़े भेजे, रथ भेजे, बंदे के लिए पढ़ने बोलिए बोलिए, इसीलिए मैं कहता कलाम जरूर साफ आ रहा है। आप गौर करें, बंदे पढ़ने के लिए लश्कर के लिए भेजे, घोड़े भेजे, रथ भेजे, तो बड़ा लश्कर भेजा, बंदा एक ही पढ़ना। अब देखिए उन्होंने जाकर क्या किया? नगर को घेर लिया। 15 आए, भोर को परमेश्वर के भगत का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है? घोड़ों और रथों समेत दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? अंडरलाइन करें इस बात को, जिनके पास बाइबल है जरूर इसको अंडरलाइन किया जाए। वो जब दुश्मन ने उनको घेर लिया तो अलीशा का एक सेवक था, सुबह जब उठा उसने जब बाहर जाकर देखा कि घोड़ों रथों एक भारी लश्कर ने उनको क्या किया हुआ है? घेरा हुआ है। तो वो बेदिल हो गया, निराश हो गया, कमजोर हो गया। तो वो क्या कहता है? क्या उसने कहा? हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? ये वो शख्स होता है जिसे खुदा ने कोई मुकाशमा नहीं दिया होता, कलाम का पता नहीं होता। तो वे आज बहुत सारे ऐसे ईमानदार हैं जो गिरजे को आते हैं, दान भी देते हैं, पर हालात जब बिगड़ते हैं तो इसी तरह करते हैं, हाय मेरे मालिक, हाय मेरे स्वामी, अब क्या होगा? फिनिश, खत्म हो चुका सारा कुछ। घबरा जाते हैं, बेदिल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। याद रखें, जिंदगी में निराशा जब आएगी तो आपके ईमान को कमजोर रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। जब आपका ईमान कमजोर हो गया, बदलू में आप पे अटैक करेंगे और आप आसानी से उसका शिकार हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं, मुकद्दस दाऊद कहता, तेरा कलाम मेरे राहों के लिए क्या है? रोशनी है। इसे सीखे। जब आप तूफानों में हो, हालात ऐसे हो जैसे इस सेवक ने कहा, दुश्मन को देखा, लश्कर को देखा, घोड़ों को देखा, रथों को देखा, घबरा गया, कहता हाय मेरे मालिक, हम क्या करें? फिनिश, खत्म हो चुका सारा। ये हाल होता है उन लोगों का जिनके पास कलाम का मुकाशमा नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। संगति पता किसके साथ थी इसकी? अलीशा के साथ। संगति अलीशा के साथ, और बातें कैसी कर रहा है? नेगेटिव। हाय मेरे मालिक, क्या होगा? आगे सुनिए। उसने कहा, अब स्वामी अलीशा बोले, उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हालेलुया, हालेलुया। अब अलीशा देखो, ईमानदार बंदा क्या बोल रहा है?
शब्दों में देखिए क्या फर्क है। और जो बेदिल होते हैं, जिनमें ईमान की कमी होती है, वो उस तरह बोलते हैं, हाय अब क्या होगा, खत्म हो गया। ईमानदार अलीशा कहता है डरना, खौफ ना खा, हमारी और जो है वो उनसे अधिक ताकतवर है जो उनकी तरफ। हालेलुया। हम जिस खुदा की इबादत करते हैं वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। कहता खौफ ना खा, जो हमारी और है उनसे ज्यादा जोरावर है। ये है ईमानदार। अपनी जुबान से कभी नेगेटिव ना बोले। आप जो बोलेंगे वही पैदा होगा। शब्द उत्पत्ति करते हैं। आप नेगेटिव बोलेंगे नेगेटिव होगा, आप पॉजिटिव बोलेंगे पॉजिटिव होगा। क्या लिखा है? दिल से ईमान ला और मुंह से क्या कर? बोलिए करें, दिल से ईमान ला और मुंह से क्या कर? तब तू क्या पाएगा? हालेलुया। तब तू क्या पाएगा? तू निजात पाएगा। ईमान दिल से होता है, मुंह से क्या होता है? इकरार होता है। आप अच्छा बोलेंगे तो अच्छा पाएंगे। हालेलुया। अलीशा कहता खौफ ना कर, डरना उनसे। दुश्मन कितना भी ताकतवर हो, हमारा खुदा उससे भी ज्यादा ताकतवर है। हालेलुया। अब आगे सुनिए। अलीशा ने यह कहकर प्रार्थना की। अब अलीशा ने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? तब अलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। इसका मतलब उसकी आंखें पहले खुली थी तो तभी दुश्मन को देख सकता। अब अलीशा खुदा से दुआ कर रहा है कि मेरे सेवक की आंखें खोल दे। कौन सी आंखें खोल दे? दिल की आंखें, मन की आंखें, रूहानी आंखें। खुदा अलीशा ने प्रार्थना की कि इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि अलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया। आज ये कोई दुआ नहीं करता। आज हम दुनिया भर की चीजें मांगते, कोई अपने लिए ये दुआ नहीं करता कि खुदा मेरी रूहानी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी कुदरत को देख सकूं। हालेलुया। कभी तो ਅਸੀਂ निराश हो जाते हैं, कभी तो ਅਸੀਂ सहारा लगते हैं, कभी तो ਅਸੀਂ सालों गुजर जाते हैं, हमें गिरजे में आते। हालात हमारे एक बच्चे की तरह होते हैं जो दूध पे लगता है, दूध पे लगता है। क्यों? क्योंकि कलाम हमारी जिंदगी का क्या अहम हिस्सा नहीं बना। जब कलाम हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाएगा फिर हम भी अलीशा की तरह कहेंगे खौफ ना खा, हमारी और जो है उनसे अधिक जोरावर है। हालेलुया। अलीशा ने प्रार्थना की और उसकी आंखें खुल गई। हालेलुया। अब ये पहला यूहन्ना उसका 4 बाब उसकी 4थी आयत में मैं जल्दी से आपके लिए पढ़ दूंगा। क्या लिखा है? हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। जो दुनिया में है, जिस पे तुम ईमान रखते हैं, वो दुनिया से क्या है? बड़ा है। हालेलुया। हालात कैसे भी हो, मुश्किल आए, तूफान आ जाए, कभी बेदिल ना हो, कभी निराश ना हो। ईमान रखें कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। खुदा से ये कहें कि मेरी आंखें खोल ताकि मैं तेरी कुदरत को, तेरी सामर्थ को, तेरे बड़े कामों को देख सकूं। हालेलुया। आइए देखें ज़बूर 3 उसकी पहली आयत। जिनकी आंखें खुली होती हैं वो क्या बातें करती है? ज़बूर 3 साम 3 और उसकी पहली आयत। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। ये दाऊद नबी बोल रहा है, कहता है हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। कहता मुझे सताने वाले बहुत बढ़ गए हैं, मेरे विरुद्ध जो उठते हैं एक नहीं बहुत है। अबशालोम से भगा था, इसका तख्त, इसकी सियासत, इसकी हुकूमत इससे छिन चुकी थी। क्या कहता है? हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध
उठते हैं, बहुत हैं, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। कहता देखिए, बहुत से लोग मेरे बारे में कहते हैं इसकी कोई मदद नहीं कर सकता, मेरे सताने वाले उठ चुके हैं, सियासत उससे, हुकूमत उससे छिन चुकी है, तखत उससे छिन चुका है। अबशालोम जो उसका बेटा था उसको मारने की उसको ढूंढ रहा था, वो उससे भागा भागा फिर रहा था। आगे देखिए तीसरी बात क्या कहता है, परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी क्या है, हालेलुया। क्यों कहता है, जिस शख्स की आंखें खुली होती है ना तो वो ये बयान करता है, कहता हे यहोवा मेरे सताने वाले जितने भी हो, पर तू मेरी क्या है, ढाल है। ढाल समझते क्या होता है? ढाल का मतलब होता है सुरक्षा। खुदा आपके इर्द गिर्द आपकी क्या है, सुरक्षा है। अग्नि में घोड़े दूत आपकी क्या करते हैं, रखवाली करते हैं। यहोवा कहता, दाऊद कहता है मेरे सताने वाले लाखों हो हजारों हो, पर हे यहोवा तू मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देगा। वो मुझे क्या देगा, उत्तर देगा। मेरा खुदा मुझे जवाब देगा। हालेलुया। पांचवी आयत, अब गौर से सुनिए। पांचवी, दुख में है, मुसीबत में है, परेशानी में है, तूफानों से घिरा हुआ है। अब वो देखिए पांचवी, मैं लेटकर क्या हो गया, सो गया। ये है जिनकी आंखें खुली होती है। ऐसे ईमानदार भी हैं जो डरते रहते हैं, सोते नहीं, या हालात बिगड़ जाए तो वो घबराते बहुत है, नींद नहीं आती, खौफ ज्यादा हो जाते हैं, बदलुए को कमजोर कर देती हैं, वो डर जाते हैं क्योंकि कलाम नहीं है। दाऊद मुश्किल में भी है, कहता है मैं लेटकर सो गया फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। हालेलुया। कौन मुझे संभालता है, यहोवा मुझे संभालता है। ये बंदे यार जिन्हें आंखें खुली हैं, वो हालातों को नहीं देखते, वो अपनी आंखें खुदा पर लगाए, क्योंकि उनको पता है हमारा खुदा जिंदा खुदा दुआओं को सुनने वाला है। मैं लेटकर सो गया और फिर जाग उठा। पतरस कैद में था, उसको सजा हुई थी और कलाम में देखा वो आराम से सो रहा था। क्यों सो रहा था, क्योंकि उनकी आंखें खुली हुई। वो हालातों की तरफ नहीं, अपने जिंदा खुदा की तरफ देखते। हालेलुया। आगे देखिए ज़बूर 27, उसमें क्या लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी क्या है, रोशनी है। यहोवा, ज़बूर 27 उसकी पहली है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरी क्या है, रोशनी है। क्योंकि यार रूह की आंखें खुली हुई है ना, तो फिर ही रोशनी आती है। कहता है यहोवा मेरी रोशनी है, मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भयंकर। देखिए क्या कहता है, यहोवा मेरी ढाल है, मेरी सुरक्षा है, मेरा कवच है, मेरी शैतान है, मैं किससे खौफ खाऊं। कोई चीज मुझे डरा नहीं सकती। बीमारियां, मुश्किलें, परेशानियां, क्योंकि मेरा भरोसा, मेरी चट्टान मेरा खुदा है। हालेलुया। जिस शख्स की आंखें खुलती हैं वो ये बोलता है, मसीह ने बार बार लोगों को कहा इनकी आंखें तो हैं पर देखते नहीं। मजबूरन यीशु मसीह को कहना पड़ा, इनकी आंखें तो हैं। जो मजबूरी लीडर थे उनको कहना पड़ा यीशु को, इनके कान तो हैं पर ये सुनते नहीं, इनकी आंखें तो हैं पर ये देखते नहीं। क्यों नहीं देखते। हालेलुया। कलाम सीखा करें, कलाम हमारी रोशनी बनता है, हमारी रूह की आंखें खोलता है। जब रूह की आंखें खुलती है तो फिर हम उसकी कुदरत को महसूस करते हैं।
उसकी कुदरत को हम बयान कर सकते हैं। हालेलुया। अब हम क्रिश्चियनिटी को गलत समझ रहे हैं। हम समझते हैं क्रिश्चियनिटी जो है क्या है, सलीब उठाने का नाम है, अपनी खुदी से इनकार करने का नाम है, अपनी खुदी से इनकार करना है, दुनिया को कहना है नो और जीसस को कहना है यस। क्या कहना है? नो टू मनी, नो टू नेम, नो टू दुनिया, यस टू जीसस, यस टू एलाइजा। अगर हम जीसस को अपनी जिंदगी का सबसे ऊंचा दर्जा देंगे, फिर हमारी आंखें खुलेगी। अब गौर से सुनिए, आंखें कैसे खुलती है, ये क्वेश्चन है। नजात मुफ्त में मिलती है, सॉल्वेशन जो है वो मुफ्त में मिलती है, पापों से माफी, छुटकारा यीशु पर ईमान लाने से उसकी सलीब पर क्या होता है, मुफ्त में मिलता है। आंखें मुफ्त में नहीं खुलती, उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए डॉक्टर जीसस के पास जाना पड़ता है। हालेलुया। अगर आप जाएंगे नहीं डॉक्टर के पास, इलाज नहीं कराएंगे, तो फिर कैसे ट्रीटमेंट होगा? हालेलुया। तो जीसस के पास जाना पड़ता है, उस पर ईमान लाना पड़ता है। ये मुफ्त नहीं होता। मैंने पहले अपना गौर से सुने, सॉल्वेशन, नजात, मुक्ति, उद्धार मुफ्त में है, पर आंखें मुफ्त में नहीं खुलती, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। अब मैं बयान करूंगा आपको, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है। गौर से सुनिए, अलीशा की आंखें ऐसे नहीं खुल गई। वो खुदा के लश्कर को, बड़े लश्कर को क्यों देख सका? उसकी एक वजह। पहला राजा 19 बाब आप घर में पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ूंगा नहीं, आपके लिए बयान कर दूंगा। और 19वां बाब और 19वीं आयत में लिखा है, जब अलीशा अपने खेत को हल जो रहा था, तो एलिया उसके पास से गुजरा। 12 जोड़ी बैल, 12 जोड़ी बैल का मतलब कि 24% उसके पास बैल थे, यानी आज की भाषा में कहें तो बड़ा रईस आदमी, दौलतमंद। तो वो अपने खेत में खेती कर रहा था, तो एलिया वहां से गुजरा, और एलिया ने क्या किया, अपनी चद्दर जो थी अलीशा पर डाल दी। अलीशा पर जब उसने अपनी चद्दर डाली, तो अलीशा ने क्या कहा, वो अपना सब कुछ छोड़ के अलीशा के पीछे हो गया। तो अलीशा को कहता है कि मुझे अपने मां बाप को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। अलीशा को एलिया ने कहा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, तेरी मर्जी, तेरी बुलाहट आ गई है, अब तुझे चलना है या नहीं मेरे पीछे चलना। एलिया उस समय दौलतमंद नहीं था, अलीशा दौलतमंद था। जब एलिया ने अलीशा पर चद्दर डाल दी, तो अलीशा इस बात को समझ गया। तो अलीशा कलाम में लिखा है, उसी समय उसने 12 जोड़ी जो उसके पास बैल थे, यानी उस समय ये दौलतमंद था, पैसे वाला था। एलिया अमीर नहीं था, उसके पास कोई दौलत नहीं थी। तो लिखा है अलीशा ने क्या किया, जो 12 जोड़ी बैल को जोत रहा था, जो लास्ट में था, उसने बैलों को वहीं क्या किया, बलि किया और वेदी बनाई और मांस पकाया, अपने लोगों को खिलाया। तो वो एलिया के पीछे हो गया। हालेलुया। अपना सब कुछ छोड़ के, दौलतमंद था, पैसा छोड़ के, रुपया छोड़ के एलिया के पीछे हो गया। हालेलुया। एलिया दौलतमंद नहीं था। तो लिखा है कलाम में, वो उसकी क्या करने लगा, सेवा करने लगा, टहल करने लगा। बाइबल मुकद्दस को जो पढ़ते हैं वो ये जानते हैं कि अलीशा का नाम पता क्या पड़ गया, अलीशा का नाम ये रखा गया था कि वो एलिया के हाथ धुलाता है, उसकी सेवा टहल करता है। क्या काम करता था? एलिया जब रोटी खाता था उसके हाथ धुलाता था, एलिया जब सोता था तो उसको कपड़े बिछाता था, बिस्तर बिछाता था, उसकी
क्यों? वो अपने आप को उसने हम्बल किया, उसने आपको दीन किया, उसने आपको नमन किया। आंखें खुलने का पहला स्टेप कि जो शख्स अपने आप को हम्बल करता है, अपने आप को दीन करता है, अपने आप को नमन करता है, छोटा बनाता है, उसकी आंखें खुदा करता क्या करता है? खोलता है। वो एलिया का सेवक बन गया, उसके हाथ धोता था, उसके काम काज करता था, क्योंकि उसको पता था कि इस शख्स के अंदर वो मसा है जो दुनिया की दौलत में नहीं है। हालेलुया। वो महसूस करता था, उसका काम करता था। ये है हलीमी जब आती है तो खुदा हमारी आंखें पता क्यों नहीं खुलती? क्योंकि हम अपने आप को हम हम्बल नहीं करते, हम गुरूर से भरे हुए हैं। गुरूर एक तरह का कोड़ है, गुनाह जैसे कोड़ है। अपने आप को नम्र करे, हम्बल करे, दीन करे। यीशु ने क्या कहा? मैं दीनों पर क्या करता हूं? दया करता हूं। और अभिमानियों का क्या करता हूं? खुदा कहता मैं उनका सामना करता हूं। अपने आप को दीन करे। शागिर्द आपस में बहसने लगे, हमें बड़ा कौन है, हमें बड़ा कौन है? यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने एक बच्चे को बुलाया, बच्चे को बुलाकर क्या कहा? इस बच्चे की मानिंद बनो। जो अपने को अब इस बच्चे की मानिंद बनाएगा, खुदा की बादशाही में क्या करेगा? एंटर होगा, दाखिल होगा। अगर जब तक हम अपने आप को हम्बल नहीं करेंगे, नम्र नहीं करेंगे, दीन नहीं करेंगे, छोटा नहीं करेंगे, तब तक हमारी आंखें नहीं खुलेंगी। स्टेप 1 ये है आंखें खुलने का पहला। नंबर 2, दूसरा राजा आप घर में पढ़ सकते हैं, उसका दूसरा। जब एलिया उठाए जाने वाला था, आप सब जानते हैं कि एलिया क्या हुआ था? उठाया गया था। जब एलिया उठाया जाने वाला था तो अलीशा उसके साथ था। तो वो गिलगाल से चले तो वो कहां पहुंचे? बैतेल में पहुंचे। अलीशा जो था वो एलिया को स्मेल करता था, सूंघता था, महसूस करता था कि इस शख्स के अंदर एक वो अनॉइंटिंग है, वो मसा है, वो कुदरत है जो दुनिया में नहीं है। उसको पता था, उसको महसूस करता था, उसके साथ साथ रहता था। जब उसको देखता था उसके अंदर वही प्यास, वही तड़प उसके अंदर भी जाग गई कि वही मसा, वही प्यास, वही तड़प उसके अंदर जागी, वही मसा मुझे बना है। एलिया बैतेल में पहुंचा, उसने पता क्या कहा? उसने अलीशा को कहा तू यही ठहरा रहा है, मैं आगे जाता हूं। तो अलीशा कहता है यहोवा और तेरी कसम मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। वो अलीशा के एलिया के साथ साथ चला। अब आगे आ गया, क्या आ गया? यरीहो। अब एलिया अलीशा को कहता है यहां तू ठहर जा। यहां पर क्या हुआ था? यरीहो में क्या हुआ था? यरीहो में क्या हुआ था? बोला करे। यरीहो में दीवार गिरी थी। एलिया कह रहा है यहां दीवार गिरी थी, यहीं ठहर जा। अलीशा कहता नहीं, मुझे तेरे साथ चलना है। खुदा की और तेरी सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ने का। आगे गर्दन नदी आ गई। एलिया बोलता यहां ठहर जा, कहता नहीं, मुझे तेरे साथ चलना है। जर्दन नदी पर क्या किया? एलिया ने चद्दर मारी और 2 हिस्से हो गया, रास्ता सूख गया। एलिया और अलीशा पार हो गए। अब टाइम आ गया। एलिया ने अलीशा से कहा, उठाए जाने से पहले अलीशा से कहा मांग, मैं तेरे लिए क्या करूं? हालेलुया, हालेलुया। अब ये सवाल है, अब खुदा आपसे पूछे कि मांग, मैं तेरे लिए क्या करूं? हमारी क्या डिजायर होगी? हम क्या खुदा से मांगेंगे? इतने पता लग जाएगा। एलिया उठाए जाने से पहले अलीशा से पूछता है मैं तेरे लिए क्या करूं? What do you want? कहता तू क्या चाहता है? अलीशा ने पता क्या जवाब दिया? कहता तेरे अंदर जो मसा है उसका दुगना मसा मुझे मिल जाए। हालेलुया। ये है डिजायर
मुझे मुझे वो मसा चाहिए। उसने कहा मुझे वो मसा चाहिए जो तेरे अंदर है, उससे दुगना मसा चाहिए। That's I want। अगर आज खुदा आपसे पूछे आपकी डिजायर क्या होगी, ये है आंखें खुलने का दूसरा स्टेप। नंबर 1 क्या था? हम्बलनेस। नंबर 2 पवित्र आत्मा की प्यास, उसको पाने की तरफ। यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए। हालेलुया। हम प्यासे ही नहीं होते। हम अगर प्यासे नहीं होंगे तो अखां नहीं खुलूगियां, फिर सानू दुनिया के लश्कर ही दिखणगे, फिर सानू बीमारियां नजर आनियां, फिर सानू दुख ही नजर आने, फिर सानू पहाड़ी नजर आने। यीशु मसीह की कुदरत नजर नहीं आनी। हालेलुया। क्वेश्चन करें अपने से, क्यों हम घबरा जाते हैं, क्यों बेदिल हो जाते हैं, गिरते आते हैं, दुआएं करते हैं, दान देते हैं, हदिये देते हैं, मुश्किलें आती, घबरा जाते हैं, खौफ ज्यादा हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारी आंखें बंद है, हम दलील नहीं हुए, हमने पवित्र आत्मा की प्यास नहीं रखी। अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, मैं उसे पानी दूंगा, उसके अंदर से जीवन की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। उसके अंदर से जीवन की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। नंबर 2 ये है। नंबर 1 हम्बलनेस, नंबर 2 पवित्र आत्मा की प्यास। क्या कलाम में लिखा है? रसूलों के अमाल प्रेरितों के काम में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। जब हमारे अंदर खुदा का रूह आ जाता है तो हम सामर्थ से पहुंच जाते हैं। यहूदा, यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया में तुम मेरे गवाह ठहरोगे। ऐसी चर्च हुआ दिन में अगे दिन नहीं वजह के कलाम में लिखा है, जब पाक तुम पर आएगा तो तुम कुदरत पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया में मेरे क्या होंगे? गवाह। मैं चर्च में गवाही देने के खिलाफ नहीं दे, पर कभी सोचे कि हम चर्च में गवाही देते हैं? कलाम में लिखा, दुनिया में मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। दुनिया में गवाही दे कि मैं बीमार था, मैं गुनाहगार था, यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर चढ़ा और मुझे क्या कर दी? हमेशा की जिंदगी दे दी। मुझे भी मिल गई, मैं अब तुम्हें बताता हूं, तुम भी पालो। हालेलुया। ये है स्टेप। हालेलुया। नंबर 3 एक हीलिंग क्रूसेड हो गया। नमान कोड़ी के बारे में आप जानते हैं, दूसरा राजा 5वां बाब। नमान कोड़ी जो कोढ़ से भरा हुआ था, उसको किसी ने बता दिया कि तू फलाना जगह चला जाएगा तो तेरा कोढ़ चंगा हो जाएगा। तो नमान भारी रथ के साथ, पैसे के साथ, रुपए के साथ, अच्छे कपड़ों के साथ इस्राइल में चला गया। इस्राइल में जाकर क्या किया? अलीशा के पास चला गया। अलीशा जब दुआ कर रहा था तो अपने घर में था, अपनी कोठरी में था। अलीशा ने जब नमान कोड़ी पैसे लेकर आया, भारी लश्कर के साथ आया, तो अलीशा अंदर था, तो पैगाम क्या भेजा? नमान को पैगाम पता क्या भेजा? जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार तो तेरा कोढ़ चंगा हो जाएगा। तो लिखा है, नमान कोड़ी गुस्से से भर गया और बबूला हो गया। मैं कहां से आया था? अपने देश से, दमिश्क से आया था, पैसा लाया था, दौलत लाया था, कपड़े लाया था। मैंने सोचा था कि ये खुदा का बंदा मेरे ऊपर दुआ करके हाथ लगाएगा तो मेरा कोढ़ जाता रहेगा। तो ये मुझे कहता है जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले। क्या हमारे देश में, दमिश्क में अमाना नदियां, पर्पल नदियां, क्या खूबसूरत नदियां नहीं है? अगर मुझे नदी में ही डूबकर शिफा पानी थी तो मैं वहां ना पा लेता। अगर 7 बार डुबकी मारनी थी तो मैं वहां ना पा लेता, तो मैं यहां क्यों आया? तो वो गुस्से में भर गया। तो उसका एक शख्स, उसका सेवक आता है डरते डरते, उसकी आपके पास आकर कहता है, मालिक, अगर अलीशा कोई भारी काम कहता तो क्या आप वो ना करते? तो उसने क्या कहा? यही कहा कि 7 बार यरदन में डुबकी मार तो तेरा कोढ़ चंगा हो जाएगा। एलिया मान गया, नमान कोड़ी मान गया। और क्या हुआ? जब नमान ने हुक्म मानना जो है ना, वो सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। अलीशा ने दुआ नहीं की, गौर से सुन रहे ईमानदार
गौर से सुनिए, वो कोर्स लेकर आया था अलीशा के पास, पता किसी मान से आया था कि मेरी के लिए दुआ करेगा तो मैं शिफा पा जाऊंगा। अलीशा ने कहा जाके गर्दन में 7 डुबकी लगा ले। कलाम में लिखा है उसने 7वीं डुबकी लगाई तो उसका शरीर एक नए जन्मे हुए बच्चे की माने हो गया। सारा कोड से उसने क्या पाली? निजात पाली। हुक्म मान लिया, उसका कोड क्या हो गया? चंगा हो गया। हालेलुया। हुक्म माने तो सब हमारी मुश्किलें, सब दुख वैसे ही खुदा शिफा में बदल देगा, चंगाई में बदल देगा। हालेलुया। ये मेरा पॉइंट नहीं। अब पॉइंट क्या है? सुनिए, आंखें खुलने का। अब जब नमान शिफा पा गया तो जब वापस आया दौलत लेकर, पैसा लेकर, तो अलीशा को ऑफर करता है। अलीशा को कहता है ये लीजिए पैसा, ये लीजिए दौलत, ये लीजिए कपड़े। अलीशा की आंखें पता क्यों खुली थी? अलीशा ने कहा आई डोंट वांट दिस, मुझे ये नहीं चाहिए। वो दुनिया की चीजों का इनकार करता था, कहता मुझे नहीं चाहिए। उसके अंदर ये डिजायर नहीं थी, ये ख्वाहिश नहीं थी। हमारी आंखें क्यों नहीं खुलती? क्योंकि हम दुनिया की ख्वाहिशों से लथपथ हुए पड़े, भरे पड़े हैं। ये आंखें ना खुलने का कारण है। अलीशा ने कहा मुझे ये नहीं चाहिए, ये तू सब ले जा। आई डोंट वांट, उसने कहा मुझे नहीं चाहिए। नमान ने उसको फोर्स किया, उसने कोई भी चीज नहीं दी, नमान लेकर चला गया। और उसका सेवक जो था उसके अंदर गुनाह आ गया। उसने पता क्या कहा कि मेरे मालिक अलीशा ने गलती कर दी। इतना पैसा, इतने अच्छे कपड़े, सोना चांदी, इसने तो मना कर दिया। वो क्या करता? मैं जाकर उसको ले, वो चोरी से जाता है और पीछे से जाता है। और जब नमान कोड़ी वहां से चला जाता है, अब तो वो कोड़ी नहीं रहा, वो शिफा पा चुका है, तो उसके पीछे पीछे जाता है और जाकर उसको कहता है नमान को कि मेरे मालिक को अब कपड़ों की जरूरत है, कुछ रुपए पैसे की जरूरत है। नमान उसको दे देता है। वो जब वापिस लेकर आता है तो सारा कुछ छुपा कर अपने मालिक के पास आता है, ड्यूटी पर हाजिर हो जाता है। अलीशा से बोलता है तू कहां था? वो बहाने मारता। अलीशा कहता जब तू वहां पर गया था, उससे बातें की, मैंने सब देखा। क्यों देखा? क्योंकि अलीशा की आंखें खुली थी। हालेलुया। अलीशा से कहता है क्या ये समा रुपए पैसे का है, सोने चांदी का है, भेड़ बकरियों का है, दास दासियों का है? खुदा का बंदा उसे लानत देता है। अब से वो कोड जो नमान कोड़ी को था, अब तुझे और तेरी वंश को सदा लगा रहेगा। हालेलुया। नमान को वो कोड लग गया क्योंकि उसकी आंखें बंद थी। ये है स्टेप तीसरा, आंखें खुलने का। हमने दुनिया से इनकार करना है। नो टू मनी, नो टू वर्ल्ड, नो टू दुनिया, नो टू नेम, यस टू जीसस, यस टू ऐसा। हमने यीशु का इनकार नहीं करना, दुनिया की चीजों का इनकार करना। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी का मतलब है अपनी सलीब उठाकर चलना। हम क्रिश्चियनिटी को गलत समझ बैठे, मैं पहले बयान किया। क्रिश्चियनिटी में हकीकत में अपने आप का इनकार करना, अपनी सलीब उठाकर यीशु के पीछे चलना है। दुनिया का इनकार कर यीशु को हां करनी। हालेलुया। हम प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल के पीछे भागते हैं। प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल हमें चाहिए। हम बरकतों को पता कैसे नापते हैं? गौर से सुनो। कारपेट आवट है, गड्डियां भी नहीं है, एक नामा हम इसे नापते हैं। क्या तेरे पास तेरी आंखें खुली हैं? तेरे अंदर ये मुकाशवा है, तू इस मिस्ट्री को, तू इस भेद को सुन सके? तेरे पास बाथरूम का मसा है, तू खुदा की वरदान को जान सके? क्या तेरे पास ये अनॉइंटिंग है? अगर ये नहीं अनॉइंटिंग तो आज खुदा से कहें रूह की बरकतें मुझे चाहिए, रूह के फल मुझे चाहिए, मुकाशवा चाहिए, तेरा जलाल मैं महसूस कर सकूं। हालेलुया। तेरी कुदरत को मैं देख सकूं। हालेलुया। आखिरी हवाला, फिर हम उसको बंद करेंगे, क्लोज करेंगे। इफिसियों और उसका 1 बाब और उसकी 18वीं आयत। इफिसियों चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 18
पौलुस रसूल ये दुआ मांग रहा है। पास्टर जी ने पिछले संडे भी ये पैगाम दिया, गौर से सुनिए। इफिसियों चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 18, और तुम्हारे मन की आंखें क्या हो? ज्योति में हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। हालेलुया। पौलुस ये दुआ कर रहा है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो और तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। हालेलुया। तुम्हारे मन की आंखें क्या हो? ज्योति में रोशन हो जाए। रोशन कैसे होगी? स्टेप नंबर 1 हलीमी, स्टेप नंबर 2 पवित्र आत्मा की प्यास, स्टेप नंबर 3 दुनिया का इनकार और यस टू जीसस, उसके पीछे होना है। तब हमारी रूहानी आंखें खुलेगी, तब हम खुदा की कुदरत को, खुदा के लश्कर को, अपने घरों को, खुदा के दूतों को देख सकेंगे। फिर हमें दुनिया का खौफ नहीं आएगा। हालेलुया। आइए अपने कदमों पर खड़े हो, आइए अपने कदमों पर खड़े हो। हालेलुया। अपनी आंखें बंद कर लें। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रेज टू गॉड। अपनी आंखें बंद करें, आंखें बंद करें, कोई जन अपनी आंखें ना खोले। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। आंखें बंद रखें। हालेलुया। खुदा की हुजूरी इस जगह पर है। हालेलुया। खुदा का मसा इस जगह पे। हालेलुया। धन्यवाद। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। आंखें बंद रखें अजीजों, कोई जन आंखें ना खोले। प्रेज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, खुदा की हुजूरी इस जगह पे। धन्यवाद करें उसका। हालेलुया। खुदा से कहें, खुदा से कहें। हालेलुया। खुदा से कहें कि खुदा आज तेरी जिंदगी बख्श कलामों बातों को मैंने सीखा है। धन्यवाद। मैं कोई से बेनती करूंगा, कोई वर्शिप गीत गाए। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। कोई जन अपनी आंखें ना खोले। हालेलुया। खुदा का मसा, खुदा की हुजूरी, खुदा का तत्व इस जगह पर है। हालेलुया। उसको महसूस करें। हालेलुया। उसकी प्रेजेंस को महसूस करें। हालेलुया। अपने लिए दुआ करें। हालेलुया। कहें खुदा मेरे रूह की आंखें खोल खुदा, मेरे दिल की आंखें खोल खुदा। हालेलुया। ताकि तेरी कुदरत को देख सकूं। हालेलुया। तेरे उस मसा को देख सकूं। हालेलुया। तेरे उस जलाल को देख सकूं। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रेज गॉड। हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। मेरे प्यारे बदल गया वो तेरे प्यार सवर गया बदली का टूटा हुआ बंधनों से जकड़ा बंधने का टूटा हुआ बंधनों से जकड़ा तेरे प्यार की मेरा जीवन बदल गया तेरे प्यार की ये वफा थी
पिता जी ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹਫਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਐ ਪਿਤਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐ ਪਿਤਾ ਆਰਾਮ ਪਾ ਸਕਣ ਪਿਤਾ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕਣ ਪਿਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ आइए अपन दुआएं करें ऐ हमारे बाप जो आसमान पे है तेरा नाम पाक मनाया जाए तेरा राज आवे तेरी मर्जी जिस आसमान पे हुई है जमीन पे भी होवे सारे रोज रोटी आसान दे सारे अफसोस माफ कर जिस तरह से तू पहले गुनाह माफ कर देना सामने कोई गुनाह ना पास तो बुराई को बचा मुराद रुगल और राज हमेशा अब खुदा ने सिलसिला फजल खुदा वाली मकर बाद में साबित और शाकर तमाम खुदा ने मुकद्दरों का नाम इस कलीसिया नाम उन तो हमेशा रखने
हालेलुया 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 यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਲਾਲ जी हाँ बैठिए